محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے، اور اگر کوئی شخص روزے دار سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، 2 بار کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے کہ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ بیرکور منڈل کے مختلف موضوعات کا دورہ کرتے ہوئے ریاستی اسمبلی اسپیکر پورشورام سرینواس ریڈی نے مختلف ترقیاتی کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ KCR کی قیادت تمام دیہات ترقی کی جانب گامزن۔ بالکنڈ علاقے کے مختلف منڈلوں میں کروڑوں روپے مالیتی رقم پر مبنی ترقیاتی کاموں کا ریاستی وزیر ویملا پورشورام ریڈی نے افتتاح عمل میں لایا۔ نیو دہلی میں آج تک انڈیا ٹوڈے تنظیم کے زیر نگرانی میں منعقدہ ساہتیہ سمیلنم پروگرام سے MLC کے کویتا کا خطاب۔ پرجاوانی پروگرام کے تحت حاصل کردہ عوامی شکایت کو فی حل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے عہدیداران کو دی ہدایت۔ شہر میں ایک اور قاضی کا اضافہ کیا جائے۔ مولانا شفیع الدین صاحب کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے قضات کے عہدے کے لیے دعوے داری پیش کرنے پر حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں۔ اہل سنت الجماعت کی جانب سے صحافتی نشست میں حکومت کے رویے پر ناراضگی کا اظہار و انصاف کا کیا گیا مطالبہ۔ پریلیمز تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو ریاستی وزیر ویملا پورشورام ریڈی نے جستجو کے ساتھ پولیس ملازمت حاصل کرنے کی دی ترغیب۔ سونے کا بیگ سرقہ کر راہ فرار اختیار کرنے والے آٹو ڈرائیور کو تحویل میں لے کر ان کے قبضے سے 12 لاکھ روپے مالیتی رقم پر مبنی سونے کے زیورات کو ضبط کرنے کا کمشنر آف پولیس کیا ناگراجو کا صحافتی بیان۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں ایک اور قاضی کا اضافہ کیا جائے۔ مولانا شفیع الدین صاحب کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے قضات کے عہدے کے لیے دعوے داری پیش کرنے پر بھی حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں۔ اہل سنت الجماعت کی جانب سے صحافتی نشست میں حکومت کے رویے پر ناراضگی کا اظہار و انصاف کا کیا گیا مطالبہ۔ آج شہر نظام آباد کے رضا گیسٹ ہاؤس پر اہل سنت الجماعت کی جانب سے ایک صحافتی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام اہل سنت الجماعت کے تنظیموں کے صدر و اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا محی الدین امام و خطیب مسجد رشیدیہ و صدر میلاد کمیٹی عبدالرشید رضوی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں زائد قاضی کا تقرر کیا گیا، جبکہ 2015 سے مولانا محمد شفیع الدین صاحب کی جانب سے زائد قاضی کے طور پر متعین کرنے کے لیے نمائندگی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کو قضات کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے 2015 سے ہی مسلسل نمائندگی جاری تھی اور کئی بار ضلع کلکٹر و مائنارٹی ویلفیئر آفس کی جانب سے اس بارے میں سروے کرتے ہوئے متعین کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس پر جواب نہ دینے پر انہوں نے حکومت کی کارروائی پر برہمی اور غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام لگایا اور اعلیٰ عہدیداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ مولانا شفیع الدین صاحب کو قضات کے عہدے پر فائز کرے اور شہر میں اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھنے والے عوام کی سہولت
کے لیے انہیں خزات زائد قاضی کا عہدہ دیا جائے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں اہل سنت الجماعت کی جانب سے دارالخزات اور ساتھ میں سنی شرعی پنچایت کا جلد ہی اعلان کیا جانے کا انہوں نے اظہار کیا۔ حافظ شفیع صاحب قبلہ کی تائید میں ایک پریس کانفرنس بلائی گئی۔ مختصراً یہ ہے کہ جو آدمی 2015 سے کوشش کرتے آ رہا ہے اور جس کی فائل وقف بورڈ تک پہنچ چکی ہے اور وہاں سے یہ تیقن دیا گیا کہ آپ کو کال آئے گی اور انتظار کیجئے، اور ہم انتظار میں بیٹھے ہی رہے اہل سنت الجماعت والے، اور اچانک ایک اعلان ہوتا ہے پیپر کے ذریعے، ہم کو اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع ملتی ہے کہ ایک نومولود لڑکے کو ہمارے سر پر نظام آباد کے عوام کے سر پر مسلط کیا جا رہا۔ نہیں، نظام آباد کی کل مسلم آبادی میں 60 سے 70% سنی لوگ ہیں۔ ہم لوگ یہ اعلان کرتے ہیں اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے، ہمارا سنی قاضی تقرر نہیں کریں گے تو ہم اپنی طرف سے اپنا قاضی کا اعلان کرتے ہیں، اور عنقریب ہمارے بھی آفس کا اعلان ہوگا، اور انشاءاللہ سنی علماء کونسل تو ہے ہی ہے، سنی شرعی پنچایت کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ میری آپ حضرات سے بالخصوص سیاسی قائدین سے میں اس طرف توجہ چاہوں گا کہ جو لوگ آپ کی جو ہے نا جی حضوری کریں گے، انہی کے لیے یہ عہدے منصب دیے جائیں گے۔ جو آدمی قابل ہے، جو 2015 سے محنت کر رہا، اس کو پسے پشت ڈال کے 2 سال سے کارروائی کرنے والے کو یہ سیاسی قائدین لے کے آ کے ٹھہرا کر دیں گے۔ یاد رکھو، آنے والا الیکشن ہے، سنت الجماعت کے بہت سے زیادہ ووٹرز ہیں، اگر آپ لوگوں کا یہی رویہ رہا تو ہم بھی اپنے خیالات میں تبدیل لا کے ہم بھی اپنا نمائندہ دوسرا چننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے قاضی کا تقرر ہونا چاہیے جو 2015 سے کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو چند روز میں انشاءاللہ ہم لوگ پھر ایک بار پریس کانفرنس کر کے ہمارے آفس کا اعلان کریں گے اور شرعی پنچایت کا بھی اعلان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہر نظام آباد میں چونکہ یہ شہر بڑا وسیع و عریض ہو چکا ہے، تو ایک قاضی کے علاوہ دیگر 2 سے 3 قاضی کی ضرورت ہے۔ اس طرح اطلاع ملنے پر میں نے 2015 میں 4 اپریل کو اپلائی کیا تھا سیکریٹریٹ سے، وہاں سے پھر ایک درخواست آئی کہ میرے تعلق سے انکوائری کی جائے۔ انکوائری ہوئی، انکوائری وقف بورڈ والے بھی کیے اور مائنارٹی آفس والے بھی کیے اور RDO والے بھی کیے۔ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ انکوائری ہو چکی ہے۔ انکوائری ہونے کے بعد پھر کلکٹر سے ایک درخواست یہاں سے گئی کہ اپلائی کیا جائے انہیں، اور پھر وہاں سے پھر دوبارہ سیکریٹریٹ میں کچھ دن فائل رکا دی گئی۔ یہاں پہ بھی تقریباً نظام آباد میں بھی کسی احباب کی جانب سے فائل کو بار بار رکایا جا رہا تھا، لیکن کوششوں کے بعد آگے بڑھتے گئی حیدرآباد سیکریٹریٹ تک پہنچ گئی۔ پھر دوبارہ سیکریٹریٹ میں کئی روز رکنے کے بعد وہاں سے پھر دوبارہ انکوائری کے لیے وہاں سے ایک درخواست آئی۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے طرف سے اہل سنت کا بھی ایک قاضی ہونا، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس پہ غور کریں گے، اس لیے کہ ہم سیدھی سی بات ہے کہ ابھی ہم معاملات کچھ اور ہو گئے، اور ہم اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اپنے طرف سے اس سے وقف بورڈ سے رجوع ہوں گے، اور وقف بورڈ پہلے اپنا اس پر جو ہے موقف ظاہر کرے کہ کیا مسئلہ ہے، کہ کیا پہلے جو قاضی تھے ان کو اس سے ان کے خدمات سے برطرف کر دیا گیا کہ دوسرے قاضی کا زور شور سے معاملہ چل رہا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ اگر 1 سے 2 کی ضرورت ہے، 2 کی جگہ 3 کیا جائے، اور اہل سنت کی طرف سے بھی ایک قاضی کو مقرر کیا جائے، ورنہ ہم دوسرے کسی مکتب فکری قضات کو نہ ہم مانیں گے، نہ ان کے جو ہے ذریعے سے ہم کوئی اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اگر ضرورت پڑی تو ہم آگے جو ہے اپنے قاضی کا اعلان کریں گے، اپنے آفس کا بھی اعلان کریں گے، اور شادی بیاہ اور دیگر جو معاملہ، بلکہ اس سے جو ہے ہم سنی شرعی پنچایت کا بھی اعلان کریں گے، اور پورے طور سے ہم پچھلے معاملات میں خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ باضابطہ طور پر کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا کہ بھائی، اس لیے ہر لوگ اپنے اپنے معاملات کو لے کے جاتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک مکتب فکر کو، ایک جماعت کو جب ترجیح دی گئی تو یہاں تو اہل سنت شہری نظام آباد میں غالباً 140-45 مسجدوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 65 سے 70 مسجدیں اہل سنت جماعت کی، اتنی بڑی تعداد ہونے کے بعد بھی ہر وقت ایسے معاملوں میں ہم کو نظر انداز کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی درگاہ حضرت شاہ عالم شاہ صاحب خادم قبرستان بودھن روڈ پر 3 روزہ سندر شریف تقریب کا اہتمام و نیاز کا اہتمام۔
आज शहर निज़ामाबाद के खदीम कब्रस्तान बोधन रोड में मौजूद खदीम दरगाह हज़रत शाह आलम शाह साहब का आज से संदल शरीफ का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद नमाज असर संदल शरीफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ दरगाह पर अख्ताम पजीर हुआ और ज़िम्मेदारों की जानिब से संदल शरीफ को चढ़ाया गया। इस मौके पर ज़िम्मेदारों ने कहा कि तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा अरसे से हर 11वीं शरीफ की 25 तारीख को हज़रत शाह आलम शाह साहब के संदल का एहतिमाम अमल में लाया जाता है। इस बार भी 3 रोज़ा तकरीब का एहतिमाम किया गया है। आज संदल, कल बरोज़े मंगल चरागा और बरोज़े चारशंबा ख़वाली का एहतिमाम रखा गया है, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुरूद सलाम की नजराने पेश के बाद संदल शरीफ के खदीम कब्रस्तान में ही नियाज का एहतिमाम रखा गया। का संदल है और हर 11वीं को 25 को मनाया जाता है। शहर निज़ामाबाद में खानखाए खदीम कब्रस्तान है और खानखाए निज़ाम जो हमारे कब्रस्तान में खानखा है और हर सालाना जो 25 11वीं को मनाया जाता संदल मुबारक। इसमें जो हम संदल मुबारक में जो तावन करते और हमेशा चाहने वाले कलर और अपने संदल मुबारक का मामला फुकराए गुरबाई अतामीन मसाकिन जितने भी है लोग अपने काम को अंजाम देते संदल मुबारक में। दूर दराज से फुकराए आते, दूर दराज से मामले होते, समा का प्रोग्राम और नाते शरीफ 3 दिन मामला चलता। सोने के जेवरात के बैग का सरखा कर राह फरार अख्तियार करने वाले ऑटो ड्राइवर को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी सोने के जेवरात को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफती बयान। जिले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि इस माह की 19 तारीख को जिले कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले नुनावत चंदना ने इनके शौहर विक्रांत सिंह के हमरा तिब्बी मुआयने के लिए निज़ामाबाद के वैष्णवी हॉस्पिटल का रुख कर चेकअप करवाने के बाद इनके बहू के साथ एक ऑटो में सवार हुए, जो कि फुलांग से RR चौरास्ते से होते हुए साई नगर की तरफ जाने वाले रास्ते में मौजूद पेट्रोल बंक जनार्दन गार्डन के अहाते में ऑटो से बाहर निकलने के फौरी बाद बैग लेने की कोशिश करने के दौरान राह फरार अख्तियार करने वाले ऑटो ड्राइवर को सीसी फुटेज का जायजा लेकर ऑटो की शिनाख्त करने के साथ साथ मुजरिम का मोबाइल ट्रेस करते हुए शहर के भोई गली में मुक़ीम मुजरिम को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी सोने के जेवरात को जब्त करने का इजहार किया। పట్టణ ప్రజలకు మరొకసారి విజ్ఞప్తి, ప్రాపర్టీని ఎప్పుడు కూడా బంగారం లాంటి ప్రాపర్టీ ఉన్నప్పుడు మీరు బ్యాంక్ లాకర్లో పెట్టుకోండి. ఇలా వెంట క్యారీ చేయడం మర్చిపోవడం సహజం కాబట్టి తమ బంగార వస్తువులను జాగ్రత్తగా బ్యాంక్ లాకర్లలో పెట్టుకోండి. అలాగే సీసీ కెమెరాలు, నేను సైతం కమ్యూనిటీ సీసీ కెమెరాల భాగంగా మీరందరూ భాగస్వాములు కాండి. ఈరోజు సీసీ కెమెరా ద్వారా మనం తక్షణం 24 గంటల్లో ఆటోలో పోయిన సొత్తును మనం రికవర్ చేయబడ్డది కాబట్టి మరొకసారి ప్రజలను నేను అప్పీల్ చేస్తున్నా మీడియా ద్వారా सीसी कैमराలకు ప్రత్యేకత ఇవ్వండి। न्यू दिल्ली में आज तक इंडिया टुडे तंजीम के ज़ेर निगरानी में मुनक़िदा साहित्य सम्मेलन प्रोग्राम में MLC के कविता ने की शिरकत। न्यू दिल्ली में आज तक इंडिया टुडे तंजीम के ज़ेर निगरानी में मुनक़िदा साहित्य सम्मेलनम प्रोग्राम में मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने शिरकत करते हुए कहा कि अदब के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को आने वाले साल से भारत जागृति फाउंडेशन इंडिया टुडे तंजीम की जानिब से साहित्य अवार्ड हवाले करने का ऐलान किया। इस मौके पर MLC के कविता ने कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक शायरों और अदबियों की जिम्मेदारी है कि वो मुआशरे में अच्छा माहौल पैदा करे। इसी तरह से अदब के मैदान में खिदमात अंजाम देने वालों की हिम्मत अफजाई व हिमायत के लिए अवार्ड का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। लेकिन साहित्य प्रेमी होने के नाते आज मैं यहाँ पे आई हूँ। हमारा फाउंडेशन है भारत जागृति और इंडिया टुडे मिलके आज एक साहित्य पुरस्कार अगले साल से लॉन्च करने वाले हैं। उसका अनाउंसमेंट करने के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं आपसे आज 1-2 बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये तहे दिल से मानती हूँ कि शब्द ही शक्ति है और वाणी में भवानी है, क्योंकि एक शब्द लाखों दिलों को हिला सकता है और एक पंक्ति पूरे मुल्क में इनकलाब ला सकता है। हमने देखा है इस देश में ऐसे हालात होते हुए, हमने देखा है ऐसे परिस्थितियों को इस देश में, और आगे चल के भी मुझे लगता है हम ऐसे परिस्थिति देख पाएंगे। मैं आज
आप सबसे अनुरोध यही करने आई हूँ कि इंडिया टुडे ने जिस तरीके के साहित्य का एक कुंभ मेला यहाँ पे रचना की है, ये तो रिकॉर्ड तोड़ एक गैदरिंग है। और परफेक्ट स्पेसिफिकली आई रियली वांट टू थैंक कलीपुरी जी और राहुल जी फॉर मेकिंग दिस हैपन। एंड आज यहाँ जितने भी युवा मित्र हैं उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि साहित्य में जो लोग अक्सर कहते हैं, अवामी शिकायत को जल्द से जल्द हल करने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। शहर के बाईपास रोड पर वाक़ जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के ज़ेर निगरानी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले शिकायत कुनिंदगान की जानिब से शिकायत पेश की गई। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करें। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात साइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से ओहदेदारान को हिदायत जारी की। प्रीलिम्स तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम पुलिस मुलाजिमत हासिल करने का रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने अपने ज़ाती खर्च से हैदराबाद के मशहूर व मारूफ कोचिंग सेंटर तर्ज के तौर पर बालकुंड हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर मुलाजिमत के लिए मंतखब होने के लिए माहिर तजुर्बेकार फैकल्टी के जरिए तकरीबन 3 माह तक मुफ्त तरबियत देने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। इस तरबियती कैंप से इस्तिफादा हासिल करने वाले प्रीलिम्स तहरीरी इम्तिहान में अहल उम्मीदवारों के लिए जिस्मानी फिटनेस टेस्ट के लिए क़ब्ल वक्त वेलपुर के खेलों के मैदान में क़याम अमल में लाए तरबियती प्रोग्राम का रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि 400 उम्मीदवार को तरबियत फराहम की गई, जिसमें से 168 अफराद पुलिस मुलाजिमत के लिए प्रीलिम्स में कामयाबी हासिल की। इन्होंने कहा कि इस फ्री कोचिंग से इस्तिफादा हासिल करने वाले ग्रुप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से प्रीलिम्स तहरीरी इम्तिहान के तहत तरबियत फराहम करने के लिए क़ब्ल वक्त वेलपुर, मोरताड़, भीमगल, बालकुंडा, कमरपल्ली के मराकज़ पर तरबियती प्रोग्राम का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। बीरकुंड मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बीरकुंड मंडल का दौरा करते हुए चिंचोली व कृष्टापुर देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ मुकामी अवामी नुमाइंदे, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के 8 साल दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को राहत पहुँचाई गई और गुज़िश्ता 200 रुपये पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में 2000 रुपये दी जा रही हैं। इसी तरह से रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल की यकसुई अमल में लाने के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत मामरीन, माजूरीन, तन्हा ख़वातीन को पेंशन की फराहमी अमल में लाते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल 15,000 करोड़ रुपए पेंशन दिया जा रहा है और इसके अलावा सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए हुकूमत तेलंगाना ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसकी किसी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाई जा रही है और अनकरीब 3 लाख रुपए स्कीम की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। अहल अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। CM KCR की क़यादत में तेलंगाना के तमाम देहात तरक्की की जानिब गामज़न होने का रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंड हल्के का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मंडलों में करोड़ों रुपए के मालियाती रकम पर मबनी तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 2 करोड़ रुपए के मसारिफ से मोपाल से SRSP पंप हाउस तक BT रोड डबल लाइन तामीरी काम और 81 लाख रुपए की लागत से कोटापल्ली से मोपाल तक तामीर होने वाले BT रोड के तामीरी काम के अलावा वेलपुर मंडल के पोचमपल्ली देहात से पड़गल देहात तक 60 लाख रुपए की लागत से पंचायत राज BT रोड के तज़यीन कामों के साथ साथ दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत आज कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाकर तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ
पाए तकमील पर पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा टीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के ज़ेर निगरानी मुनाकिदा 55 में कौमी लाइब्रेरी तकारीब के अख्तामी प्रोग्राम में ZP चेयरमैन डी विठल राव मियां नीतू किरण ने की शिरकत। निज़ामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के ज़ेर निगरानी में ज़िले लाइब्रेरी सदर ए राजेश्वर व सेक्रेटरी बुग्गा रेड्डी के ज़ेर निगरानी मुनाकिदा 55वें कौमी लाइब्रेरी तकारीब के अख्तामी प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव मियां नीतू किरण डॉक्टर बापू रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए शमा रोशन करने के बाद प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किताब का मुताला करना बहुत अच्छी आदत है, इसीलिए हर एक फर्द इसको अपनी आदत के तौर पर अपनाए। इन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत जिले के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का रुख करके मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने का इजहार किया। ఇటువంటి గ్రంథాలయ సౌకర్యం సదుపాయాలు మనమందరం ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి మరి గత మీటింగ్లో ఈ చైర్మన్ గారు చెప్పింది ల్యాండ్ గురించి మేము కూడా అన్నాం, నీతి కిరణ్ గారు కూడా మేయర్ గారు కూడా అన్నారు, ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, మంత్రివర్యులు ఉన్నారు, మేమందరం కలిసి మరి వాళ్ళ ద్వారా ముఖ్యమంత్రికి కూడా వినియోగించి మరి ఖచ్చితంగా అలాట్మెంట్ చేపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది। సంతోషమైన వార్త, అందరికీ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఇప్పుడే చైర్మన్ గారు ల్యాండ్ కూడా అలాట్మెంట్ అవుతున్నట్టు ప్రాసెస్ జరుగుతున్నట్టు చెప్పడం జరిగింది। మరి దానికి మనందరి తరఫున ఆయనకు శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి మీకు తెలుసు ఆయన వయసు 75 సంవత్సరాలు, నా వయసు ఎంత అంటారు చెప్పండి చెప్పండి 81 70 years రన్నింగ్। ఎందుకంటే మేమిద్దరం 14 సంవత్సరాలు మాట్లాడి బాబు చదువుకుంటున్నాను, 14 సంవత్సరాలు ఉద్యమంలో పాల్గొని ఒక బోల్డ్గా తయారైన డైలీ అన్ని వాకింగ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి, అన్నీ సిస్టమేటిక్గా చేస్తాం కాబట్టి ఈరోజు ఈ వయసులో కూడా మరి ప్రజాసేవ చేస్తున్నామంటే అది మీ అందరి నేను చెప్పక తప్పదు। మరి ఇంత మంచి అవకాశం, ఇంకా మాకు ఏంటంటే మేము ఉద్యమ నాయకులం, మాకు మైకు చాలా వినోవాసం ఉంటుంది, గంటలు గంటలైనా మాట్లాడాలి కానీ మాట్లాడలేదు। స్పీకర్ గారు వస్తున్నారు। CEO वक्फ बोर्ड के 16 दिसंबर से क़ब्ल तक़र्रुर का इम्कान, बोर्ड की जानिब से 2 नामों की महकमे अखलाती बहबूद से सिफारिश की तैयारियाँ। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर मुस्तक़ल ओहदेदार के तक़र्रुर के लिए 16 दिसंबर से क़ब्ल अहकाम की जारी अमल में लाई जाएगी। हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता माह दाखिल दरख्वास्त नंबर 40043/2022 में अहकाम के मुताबिक ऑर्डर के अंदरून 4 हफ्ते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर मुस्तक़ल ओहदेदार के तक़र्रुर का महकमे अखलाती बहबूद को पाबंद बनाया गया है। अदालती अहकाम के मुताबिक तेलंगाना वक्फ बोर्ड को CEO के तक़र्रुर के सिलसिले में वक्फ एक्ट 1995 की दफ़ा 23 के तहत हुकूमत को डिप्टी सेक्रेटरी रैंक या इससे ज़्यादा रैंक के हामिल 2 ओहदेदार के नाम रवाना करने की हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी हफ्ते के दौरान बोर्ड अरकान का इजलास तलब करके 2 ओहदेदारों के नामों को खतियत दी जाएगी और इनको रवाना करके महकमे अखलाती बहबूद से ख्वाहिश की जाएगी कि वो अदालत के अहकाम के मुताबिक 2 नामों में किसी एक को मुस्तक़ल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर तक़र्रुर करने अहकामात जारी करे। ज़राए के मुताबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने जारी हफ्ते के दौरान अराकीन वक्फ बोर्ड का इजलास तलब करने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि इजलास में 2 नामों को खतियत दी जाएगी। 16 नवंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात की तहरीरी नकल मौसूल होने के बाद अरकान ने कारकर्दगी को मूल के मुताबिक बनाने और ज़ेर-ए-इल्तिवा उमूर को हल करने फौरी अदालती अहकाम के मुताबिक इजलास की तलबी और ओहदेदारों के नामों को खतियत देने दबाव डालना शुरू कर दिया है। अराकीन बोर्ड और मुलाजमीन का एहसास है कि वक्फ बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बोर्ड के जिम्मेदारों में दरमियान जारी रस्साकशी के सबब बोर्ड के रोजमर्रा के उमूर मुतासर हो रहे हैं। तेलंगाना में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, सोशल मीडिया की इत्तलात गलत, रोस्टर सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं, हुकूमत की वजाहत।
हुकूमत की जानिब से आज वजाहत की गई कि रियासत में मुस्लिम BCE ज़िमरे के तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% करने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं है। मुसलमानों को BCE ज़िमरे के तहत तालीमी इदारों और रोज़गार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात को घटाकर 3% करने से मुताल्लिक़ खबरों और सोशल मीडिया में पोस्टर्स को बेबुनियाद, गुमराहकुन और झूठ पर मबनी करार दिया गया। हुकूमत ने वजाहत की कि तेलंगाना स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1996 में हाल ही में तरमीम की गई, जिसमें दर्ज फहरिस्त क़बाइल के तहफ़्फ़ुज़ात को 6% से बढ़ाकर 10% किया गया है। इन क़वायद में BCE ज़िमरा यानी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात में कोई तब्दीली नहीं की गई। सरकारी बयान में कहा गया है कि मुसलमानों के BCE तहफ़्फ़ुज़ात 4% बरकरार है और इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। BCE ज़िमरे के तहत 100 नुकाती रोस्टर में 19, 44, 69 और 94 मुकाम पर जिक्र किया गया है। अवाम से अपील की गई कि वो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही इन गुमराहकुन खबरों पर भरोसा ना करें और ऐसी गलत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में जारी करदा रोस्टर की तफसीलात में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के सिर्फ 3% तस्करे पर समाजी और सियासी हलकों में नाराज़गी जताई गई, जिसके बाद आज हुकूमत ने वजाहती बयान जारी करके रोस्टर सिस्टम में इन 4 मकामात का हवाला दिया जहाँ मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र शामिल है। वेलपुर मंडल के ब्रिज से वाबस्ता तामीरी कामों के अलावा मोते ब्रिज तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल का दौरा करते हुए वेलपुर में ब्रिज से वाबस्ता तामीरी कामों के अलावा मोते में ब्रिज से मुंसलिक तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में बालकोंडा हल्के की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तामीरी कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाने का इजहार किया। शहर के कलेक्टर मैदान में नमस्ते तेलंगाना व तेलंगाना टुडे के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए ऑटो शो का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया मुशाहिदा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शहर के कलेक्टर मैदान में नमस्ते तेलंगाना व तेलंगाना टुडे के ज़ेरे निगरानी में क़याम किए गए ऑटो शो का मुशाहिदा करते हुए मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से नुमाइश के लिए रखे गए गाड़ियों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शहर के अवाम के लिए बैंक की जानिब से लोन की सहूलत फराहम की गई है, लिहाजा अवाम इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। లాస్ట్ ఇయర్ రాలే కానీ ఈ సంవత్సరం చూశాను, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేశారు. అంత ప్రతినిధులు, కంపెనీ ప్రతినిధులు కూడా, బ్యాంక్ ప్రతినిధులు అందరూ ఉన్నారు. మీ అందరికీ మీ వ్యాపారం బాగా జరగాలి, మంచి కార్లు ప్రొడక్షన్ జరగాలి. దేశంలోనే నంబర్ 1గా తెలంగాణ రాష్ట్రం అమ్మకాలు నిలవాలని నేను కోరుకుంటూ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ राजमपेट चिन्ना मल्लारेड्डी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मरकज का जिले रेवेन्यू कलेक्टर चंद्र मोहन ने मुशाहिदा करते हुए रिकॉर्ड का लिया जायजा। जिले रेवेन्यू कलेक्टर चंद्र मोहन ने राजमपेट चिन्ना मल्लारेड्डी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुशाहिदा करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों को मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के लिए कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर पर किसान अपनी धान के ज़ख़ीरे को फरोख्त कर मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इसी तरह से जिले रेवेन्यू कलेक्टर ने चिन्ना मल्लारेड्डी में वाक़ वेंकटेश्वर राइस मिल का मुशाहिदा करते हुए राइस मिल मालिकीन को मिलिंग में तेजी अमल में लाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में राजमपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन एन अशोक व दीगर ने शिरकत की। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ इंदौर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के सदर डॉक्टर के श्री शैलम के ज़ेरे निगरानी में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ इंदौर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक सदर डॉक्टर के श्री शैलम के ज़ेरे निगरानी में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर श्री शैलम ने कहा कि एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर एन बालिश, टाउन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के ज़ेरे निगरानी में 100 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने शिरकत की। खान की दवाखाने में इलाज मुआवजा हासिल करने वाले अशखास को CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए रकमी इमदाद हवाले करने का अन्नाराम सरपंच ने किया इजहार। अन्नाराम देहात में मुकामी सरपंच ने CM KCR की जानिब से गरीब अवाम को कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतारफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा CMRF चेकों की अनुषा रानी को 12,000, इन मलैया को 30,000 रुपये का चेक हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत
सीएम केसीआर की जानिब से शुरू किए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मुस्तहिक़ीन को रकम इमदाद हवाले की जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस पर सीएम रिलीफ फंड की दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से रकम इमदाद देने का इजहार किया। सऊदी अरब में मुलाजिमत के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, हुकूमत सऊदी अरब का अहम फैसला, मुलाजिमत के ख्वाह हिंदुस्तानियों के लिए खुशखबरी। सऊदी हुकूमत ने मुलाजिमत के उसूल के लिए जाने वाले हिंदुस्तानियों के हक़ में एक अहम फैसला किया है। मुलाजिमत के लिए सऊदी अरब जाने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को सफ़र के लिए पुलिस क्लियरेंस दाखिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नई दिल्ली में वाज़े सऊदी अरब के सिफारत खाने में यह ऐलान किया। सिफारत खाने के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरियों को सऊदी अरब में मुलाजिमत के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना रहेगा। सिफारत खाने ने अपने ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सबब हुकूमत सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी शहरियों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स की पेशकशी से इस्तिस्ना दिया है। जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने इसकी तौसीक़ की है। वाज़ेह है कि पीसीसी क़वायद पर सबसे पहले नई दिल्ली में वाक़ सऊदी सिफारत खाने ने अमल किया था, जिसके बाद इसे मुंबई कौंसलेट में तोसी दी गई। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स की पेशकशी की शर्त के बायस एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए प्रोसेसिंग में ताख़िर होती थी। हिंदुस्तानी अहदेदारों ने इस सिलसिले में सऊदी अरब के अहदेदारों को वाकिफ़ करवाते हुए इन्हें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना के लिए तरग़ीब दी। अहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तान में पासपोर्ट की ड्राइव पुलिस वेरिफिकेशन के बाद की जाती है। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। बेरकुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करते हुए रियासती असम्बली स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। सीएम केसीआर की क़यादत तमाम देहात तरक्की की जानिब गामज़न। बालकुंड हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में करोड़ों रुपये मालीती रकम पर मबनी तरक्याती कामों का रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। न्यू दिल्ली में आज तक इंडिया टुडे तंजीम के ज़ेरे निगरानी में मुनक़िदा साहित्य सम्मेलनम प्रोग्राम से एमएलसी के कविता का खिताब। प्रजावानी प्रोग्राम के तहत हासिल करदा अवामी शिकायत को फिलफुल हल करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारान को दी हिदायत। शहर में एक और काजी का इजाफा किया जाए। मौलाना शफीउद्दीन साहब की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से क़ज़ात के ओहदे के लिए दावेदारी पेश करने पर हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं। अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से सहाफ़ती नशिस्त में हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार व इंसाफ का किया गया मुतालबा। प्रीलिम्स तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वालों को रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने जुस्ताजू के साथ पुलिस मुलाजमत हासिल करने की दी तरग़ीब। सोने का बैग सरखा कर राह फरार इख्तियार करने वाले ऑटो ड्राइवर को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 12 लाख रुपये मालीती रकम पर मबनी सोने के जेवरात को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियानगर राजू का सख्ती बयान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।